السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایک ایس کے ساتھ۔ کافی دن کے بعد جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ذرا ہم سیر سپاٹے پہ نکلے ہوئے تھے۔ آج بڑی اہم خبریں ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے غیر مشروط معافی نامہ جو ہے وہ توہین عدالت کے جو شوکاز نوٹس جاری ہوئے تھے 36 چینلز کو وہ جمع کروایا اور وہ مقدمہ نپٹا دیا گیا۔ اور یہ مقدمہ شروع ہوا تھا جب فیصل باوڈا اور مصطفیٰ کمال نے جسٹس عطر من اللہ کے حوالے سے ایک دھواں دھار پریس کانفرنسیں الگ الگ پریس کانفرنسز کی تھیں۔ پھر انہوں نے معافی مانگ لی تھی، غیر مشروط معافی مانگ لی، پچھتاوا ظاہر کیا، عدالت نے ڈسچارج کر دیا شوکاز نوٹس۔ اور آج مین سٹریم میڈیا کی جانب سے جو پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ہے اور دیگر ٹیلی ویژن چینل، انہوں نے اپنا جواب داخل کیا اور غیر مشروط معافی جو ہے وہ اس میں کئی، اور عدالت نے کہا کہ وہ جو غیر مشروط معافی نامہ ہے وہ ٹیلی ویژن چینلز پرائم ٹائم میں اپنے نشریات میں دکھائیں گے۔ تحریری آرڈر آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ بات کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کافی جہاندیدہ سیاستدان ہیں، اور آج انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملٹری ٹرائل کے جو مفروضاتی درخواست تھی کہ ان کا ملٹری ٹرائل عمران خان کا ہو سکتا ہے، اس پر جو رجسٹر آفس کے اعتراضات تھے وہ دور کر دیے ہیں اور وفاقی حکومت سے اس حوالے سے جواب طلب کر لیا۔ جبکہ تیسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں بریت کی جو درخواست داخل کی تھی بانی پی ٹی آئی عمران خان نے، وہ درخواست احتساب عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ تو ان معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو پہلے تو میرا خیال میں طیب بلوچ صاحب سے شروع کریں یا جہازیب عباسی صاحب آپ سے؟ طیب بلوچ صاحب کے پاس بڑا مال ہے، کیا ہے؟ بڑا مال ہے ان کے بڑا پاس مال ہے ڈسکشن کے لیے۔ ہاں جی طیب صاحب، بڑی پرچیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ سر یہ پرچیاں ضرورت ہیں کیونکہ اس میں کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، اور بیسیکلی جو ایک کوشش کی جا رہی تھی آج اس کا ایک بار آور وہ کوشش ثابت ہو چکی ہے۔ خاص کر مولانا فضل الرحمان نے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاک کی، تو مولانا فضل الرحمان پہ ایک کچھ چیزیں آ رہی تھیں، جیسا کہ آپ بھی گزشتہ روز جو ہے جب لنڈن ایئرپورٹ پہ تھے تو آپ نے بھی مجھ سے بات کی کہ طیب کیا اپڈیٹس ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سر باقی چیز تو سب کچھ ٹھیک ہے، جوڈیشل پیکج کا بھی ہم سن رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب جو ہے نا وہ ابھی صحیح طور پہ مان نہیں رہے۔ ان کے یا تو کچھ تحفظات ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ابھی تک ان کا کوئی کھل کے موقف سامنے نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ زرداری صاحب بھی جو ان کے پاس چل کے گئے، شہباز شریف بھی گئے، تو وہ چیز نہیں آ رہی تھی۔ لیکن آج مولانا صاحب نے جو میڈیا ٹاک کی ہے نا سر، وہ میڈیا ٹاک میں انہوں نے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ ایون کہ مثلاً کیا کیا بتا دیا؟ ایون کہ وہ جو جوڈیشل پیکج کا ہم سن رہے تھے اس کے مدرجات بھی ہمارے سامنے نہیں تھے، لیکن مولانا صاحب کی اس پریس ٹاک سے ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ بہت کچھ ایسا ہے جو حکومت سوچ رہی تھی وہ مولانا صاحب کی جانب سے بھی ویسے ہی تجاویز آئی ہیں۔ اب ایک چیز تو ہے کہ وہ تو ایک پولیٹیکلی انہیں کافی ساری باتیں کی، لیکن ایک چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ توسیع نہیں ہونی چاہیے۔ آرمی چیف کا انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آرمی چیف کی توسیع کے لیے پورے پارلیمان کا بازو مروڑ کر جو ہے وہ توسیع، اور وہ توسیع بھی یہیں سے انیشیٹ ہوئی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی وہ ججمنٹ ہے، آصف سعید کوسہ اور مظہر المیہ خیل صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جو ایکسٹینشن کا وہ تھا نوٹیفیکیشن، وہ تو سسپینڈ کر دیا تھا، لیکن بعد میں پھر یہ تجویز آئی، اور جو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ہی آئی۔ اس حوالے سے لنڈن میں بھی ایک شخصیت سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں بیان کی۔ اب وہ شخصیت اس وقت اقتدار میں تھی صحیح ہے کہ، اور وہ یہ سارے معاملات کو دیکھ بھی رہی تھی جب یہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھے۔ بہرحال انہوں نے ایک مجھے کہانی سنائی تھی، وہ کہانی پھر کبھی صحیح، ٹھیک ہے، تو مطلب جسٹس منصور علی شاہ نے وہ 6 ماہ کی سپریم کورٹ نے گھڑی آگے باجوہ کر کو دی تھی۔ ہاں ایکسٹینشن دی، اور پھر پارلیمنٹ
ने उसके ऊपर कानून साजी की थी। कभी घड़ी आगे करते हैं, कभी घड़ी पीछे करते हैं, तो लगता है मौलाना साहब का उस तरफ इशारा था। हाँ उस तरफ इशारा था कि मरोड़ कर पार्लिमान की बाजू मरोड़ कर हमें वो जो है दी गई। फिर मौलाना साहब कहते हैं कि अदलिया के मुतल्लिक जो उन्होंने है ना, मैं वो बातें सिर्फ कहूँगा कि वो कहते हैं कि आज अदलिया जो है वो लाबियों में तकसीम हो चुकी है, कोई जज किसी जमात का है तो कोई जज किसी जमात का है। उन्होंने कहा कि मैं तजवीज़ करता हूँ कि अदालती इस्लाहत अपोजिशन के साथ मिलकर लाई जाएँ। ये फ़िक्रा बड़ा गौर तलब है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ या 2-4 रोज़ पहले जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक वजाहत आई थी, तो उसमें भी वो जुडिशल पैकेज और वज़ीर कानून की वो तजावीज़ जो मंसूर अली शाह की मौजूदगी में इन चैम्बर डिस्कशन हुई थी, तो उसमें भी चीफ़ जस्टिस साहब की भी यही राय थी कि जो है अगर आप कोई मतलब है आइन साजी करना चाह रहे हैं, और ख़ासकर उसमें जो नुक्ता था वो नुक्ता ये था कि वो तो है कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट जो मर्जी करे, वो तो उस पर कोई उसको एडवाइस करने की जरूरत हाँ नहीं लेकिन है। उसमें एक वो तो उसमें जो है वजाहत थी कि जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ था उस हवाले से। हाँ नुक्ता ये था कि हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि जो जजेस तकर्री का कमीशन है, जुडिशल कमीशन, उसको और फिर वो जो जजेस तकर्री के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है, उन दोनों को ज़म कर दिया जाए। तो मौलाना फजल रहमान ने जो है यही तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा है कि मैं तजवीज़ करता हूँ कि अदालती इस्लाहत अपोजिशन के साथ मिलकर लाई जाएँ और चीफ़ जस्टिस की तैनाती का कोई मियार नहीं है। ये मौलाना साहब ने ऑन द रिकॉर्ड कहा है, आज कहा है कि चीफ़ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का बन जाता है उनकी जो है कोई मियार ही नहीं है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि पार्लिमान की बालादस्ती भी कायम होनी चाहिए, फ़ौज और अदलिया को पार्लिमान का एहतराम करना होगा। यहाँ पर वो कहते हैं मैं तजवीज़ करता हूँ कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास होना चाहिए, और वो जो है चीफ जस्टिस जो सीनियर जजेस हैं 3 या 5, उनमें से कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट करें। कौन कौन करे? ये जुडिशल कमीशन के अरकान और पार्लिमानी कमेटी मिलकर। तो 19वीं तरमीम को छेड़छाड़ करने वाली हाँ तो मौलाना साहब मतलब वही ना, वो 19वीं आईनी तरमीम जो है वो जाहिर है कि वो कब आई थी, उसका भी अपना एक बैकग्राउंड है। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, और 18वीं आईनी तरमीम आ चुकी भी थी, और उसमें इलेक्शन कमीशन की तारीफ तब्दील कर दी गई थी। तो जबकि 25 के करीब पार्लियामेंटेरियंस जो थे पीपल्स पार्टी के, जिनमें वज़ीर ख़जाना भी शामिल थे, वज़ीर दाखिला भी शामिल थे, उनका मुकदमा भी था कि जी वो इनकम्प्लीट इलेक्शन कमीशन के नीचे जो है वो उसको इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, तो लिहाजा उनको ओहदों से फ़ारिग किया जाए। और इसी दौरान में जो है ये जुडिशल कमीशन की भी थी। तो फिर इस क्योंकि जुडिशल कमीशन के ऊपर जो है आपको पता है ना, पहले हैयत कुछ और थी, फिर उसमें जजेस की इन्वॉल्वमेंट, तादाद बढ़ाई गई, उसके रूल्स बनाए गए, नॉमिनेशन का जजेस की इख्तियार जो है वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस का दिया गया, और चीफ़ जस्टिस जो हैं उनको इख्तियार दिया गया कि वो हाई कोर्ट के लिए नॉमिनेशन जो हैं वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएं। लेकिन जुडिशल कमीशन की अपने अंदर लॉयर्स की एक बहुत बड़ी डिमांड रही थी कि इसके रूल्स जो हैं वो तब्दील होने चाहिए, नॉमिनेशन का इख्तियार पूरा जुडिशल कमीशन के पास होना चाहिए। उसी हवाले से फिर रूल्स कमेटी भी बनी जो मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में थी। पहले बंदयाल साहब की सरबराही में बनाई थी, गुलजार साहब ने उससे तो कोई काम नहीं किया था। फिर उसके बाद जो ये हुई, और फिर वो आइनी तरमीम वाली बात आ गई कि जुडिशल कमीशन की हैयत चेंज हो सकती है, लॉ मिनिस्टर का कहा, फिर ये मखसूस नशिस्तों वाला केस आ गया। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना वो इस तरह से है। तो ये एक दरीना मुतालबा रहा है कि जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से जो तरीक़ाकार है उसके अंदर तब्दीली लाई जाए, और बिलखुसूस 19वीं आइनी तरमीम, क्योंकि वैसे भी ज़ोर ज़बरदस्ती हुई थी, उन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियन बचाने थे, उन्होंने कहा ठीक है जज की तादाद बढ़ा दो। यहाँ पे मौलाना साहब ऐसे ने ही- कहा है कि सिर्फ सीनियरिटी होना काफ़ी नहीं है चीफ जज के लिए। 5 में जो हैं पहले 5 सीनियर या सीनियर मोस्ट जो 5 हैं या 3 हैं, मुझे याद पड़ता है आप के साथ भी एक वीलाग हुआ था और आपने यही राय एक दी थी, ठीक है। तो अब लग रहा है कि ये मौलाना साहब भी वही उसी राय का जिक्र कर रहे हैं। लगता है मौलाना साहब आपके वैसे वीलाग सुनते हैं, वो एक दफ़ा शायद आपको कहा भी सही।
अच्छा, तो मुल्ला साहब ने भी कहा कि 19वीं तरमीम जो है ना वो ब्लैक मेल करके जो है ना वो कराई गई थी, और मुल्ला साहब ने तो ये भी कहा कि तो 19वीं आपको सारे फैक्ट्स बता दिए हैं। ये जो अभी जहाज़ेब ने कहा कि इससे लगता है कि 19वीं तरमीम ख़त्म हो रही है, मुल्ला साहब ने मुतालबा भी कर दिया कि 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए। और फिर दूसरा उन्होंने वही जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो था वो एक बात आई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हाँ यही था ना? वही था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तो हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है ना। एक अलग आईनी अदालत का क़याम था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो शिक नंबर या चौथा पॉइंट था, उसमें सर उसमें एक आईनी अदालत का क़याम था, और उस आईनी अदालत का मेकनिज़म भी लिखा हुआ था कि उसके जजेस जो है वो चारों सूबों से लिए जाने हैं, और उनकी अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया भी था कि कौन कौन से जो है जो यानी कि हाई कोर्ट का जज बनने के काबिल हो। हाँ, लेकिन ये तो सारी वो चीज़ें हैं जो माजी की चीज़ें हैं ना, लेकिन अभी कोई कंप्लीट तो हो था, देखें उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत समझ है, राइट टू अपील आपको हाई कोर्ट तक रखनी पड़ेगी, और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आपने जो आइन की तशरीह के हवाले से केसेस जैसे दीगर मुल्कों में होता है कि साल के केसेस सिलेक्ट कर लिए जाते हैं और फिर पूरे साल जजेस वही केस सुनते हैं। अमेरिका के अंदर ऐसा ही है। जी। तो बहरहाल ये जो इशू है ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, पाकिस्तान बार कौंसिल हो, इसके अलावा इवन सियासी जमातों की जानिब से भी बारहा ये बात की जाती रही है कि जो जजेस तकर्री बराए पार्लिमानी कमेटी है उसका जो किरदार है वो एज अ रबर स्टैम्प नहीं होना चाहिए, कमेटी को बाइख्तियार होना चाहिए, और इसके ऊपर बहुत सालों से डिस्कशन हो रही है। कम से कम 10-12 साल से तो मैं देख रहा हूँ हर मौके के ऊपर कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जारी होती रही। 2010 में 18वीं तरमीम आई थी ना, अप्रैल 2010 में। जी, तो उसके बाद से जी 14 साल तो हो गए ना, तो अब ये मामला चल ही रहे ना किसी तरह से, किसी ना किसी हवाले से। लेकिन सिद्दीकी साहब असल इशू ये है कि आइनी तरमीम का मामला आप जानते हैं कि इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, और 2/3 अक्सरियत के मामले के ऊपर हमें पता है कि कौमी असम्बली में तो शायद फिर भी कोई बहुत सारे हमारे जो पार्लियामेंट कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि 2/3 मौलाना साहब को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो आ सकती है। सेनेट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 2-3 नंबर्स जो हैं वो अभी भी कम हैं। अब जैसे तैयब बलोच ने ये बात की कि अपोजिशन को भी इस प्रोसेस में जो है वो शामिल होना चाहिए, तो इस पे अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI, इन तमाम अपोजिशन की जमातों से बातचीत होती है और फिर उसके बाद अगर कोई इसका हल निकाला जाता है तो वो उसके ऊपर मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। ये मेरा एक ओपिनियन है इसमें। नहीं, वो तो ठीक है ओपिनियन, वो तो पार्लियामेंट का हक। देखें, पार्लियामेंट का तो काम यही है ना, कानून बनाना, आइन में तरमीम करना, और जो भी ज़रूरियात है जिस तरह से भी वो चाहती। बहरहाल वो लेजिस्लेटर्स का काम है और लेजिस्लेटर का इख्तियार भी है। तो अब वो, लेकिन बात वही है कि अभी तक पुरसरारियत बाकी है कि कौन सा जुडिशल पैकेज आएगा या इस तरह की अदालती इस्लाहात किस किस्म की और किस नौइयत की होंगी। बिल्कुल सर, ये चीज़ें तो देखें, अभी जो मुल्ला साहब की राय है ना, इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ तो बड़ी हमें विजिबल नज़र आ रही है। एक तो मुल्ला साहब का ये कि जुडिशल कमीशन और पार्लियामानी जो कमेटी है अपॉइंटमेंट बाय जजेस, उसको जम करके या मौलाना साहब को उनका मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और वो चीफ जस्टिस का तयन करें कि वो सीनियर 5 या सीनियर 3 में से कौन चीफ जस्टिस होना चाहिए। एक ये बात। मेरा ख्याल अभी तो उन्होंने इतनी मोडालिटीज के अंदर नहीं गए, वो तो उन्होंने कहा कि भाई एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि सीनियर मोस्ट वाला जो है वो ख़त्म किया जाए। अब इसका सीनियर मोस्ट की भी बड़ी एक, पता है आपको, इस हवाले से भी बड़ी बेचैनी है। और उसकी वजह ये है कि फिर वो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स क्योंकि जुडिशरी ने करनी होती हैं, और फिर वो 10-10 साल पहले के भी मैं कौन सी गोटियाँ कहाँ फिट करके जाऊँ, और फिर मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस कौन होंगे। 4 नंबर गेट कभी मशहूर होता था, अब फिर 4 नंबर बड़ा पॉपुलर हो गया था बंदयाल साहब के दौर के अंदर। तो वो फिर वो कोर्ट पैकिंग की भी बात की थी मकबूल बाकर साहब ने। तो इस तरह की तो इश्यूज तो हैं, इश्यूज तो डेवलप होते हैं और हल हो रहे हैं सारा। देखें, अभी मैं आपको बताऊं तो कि हम एक चीज़, रात गए, आप सफ़र में थे, रात गए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ, ठीक है। मैंने देखा कि उस मीटिंग में बिलावल के साथ बैरिस्टर मुर्ज़ा वहाब थे।
बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को अगर आप जानते, ठीक है वो मेयर कराची ज़रूर हैं, लेकिन उनके साथ वो एक बैरिस्टर भी हैं, आइन साज भी रहे हैं, कानून वो चीज़ों को परखते हैं। दूसरी साइड की देखें, जो शहबाज शरीफ के साथ लोग बैठे हुए थे, अटारनी जनरल साहब थे, वज़ीर कानून थे, बाकी इसाक डार भी थे और वज़ीर इत्तलात भी थे, लेकिन ये दो बड़े होते। और मैं ये समझ रहा हूँ कि उन्होंने भी बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दी, अटारनी जनरल ने, वज़ीर कानून ने भी, और ये चीज़ें काफ़ी हद तक हुकूमत अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है। मौलाना फजल रहमान जो है उससे था कि क्योंकि जो इसने बात की ना कि सेनेट में अगर मौलाना साहब के वोट मिलाएं और ANP के वोट मिलाएं तो इनके वोट जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, बल्कि एक वोट ऊपर बनता है। चलें, अब वो पता नहीं, अभी तो जब वो कहते हैं जो राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने, जब बिल टेबल होगा तो फिर पता लगेगा और फिर उसके ऊपर बहस होगी, और बहस होने के बाद ही होनी चाहिए आईनी तरमीम। जो 190 मिलियन पाउंड बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद किस बुनियाद पर कर दी एहतसाब अदालत के जज ने? मेरे ख्याल में हम भी घड़ी थोड़ी सी रिवर्स करते हैं और वापस उस लम्हे पे जाते हैं जब अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा था जी कि इमरान खान को जो है वो लाइव इस केस की लाइव प्रोसीडिंग होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की जो मेजॉरिटी फ़ैसला ये था कि इस प्रोसीडिंग को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो तरामीम को तो इमरान खान साहब NRO कहते थे ना, NRO 2 कहते थे, तो उसी NRO 2 के तहत उन्होंने दरख्वास्त दाखिल सर की। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि राइट ऑफ ऑडियंस जब इमरान खान को दी गई तो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि मुझे पता है कि मेरे पर भी नैब के केसेस हैं, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, और मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल भी मुझे इन नैब तरामीम से कोई फ़ायदा नहीं लूँगा। और सबसे पहले गए भी। और फिर जब फ़ैसला आया तो पहली दरख्वास्त जिसकी आई वो इमरान खान साहब की थी। तो चलें ठीक है, अब एक कानून है, वो फ़ायदा सबको होता है। वो जैसे बारिश कहते हैं ना, जब होती है तो वो ये नहीं देखती कि कहाँ पे सहरा है या कहाँ पे दरिया बह रहा है। तो उन्होंने बहरहाल दरख्वास्त दे दी। एक दरख्वास्त में उनको रिलीफ मिला है और वो है तोशाखाना 2 का, जिसमें करप्शन की मालियत जो है वो 50 करोड़ से कम पे थी, वो FIA को भिजवा और दिया। वो इशू FIA को ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने कहा जी, और फिर उन्होंने कहा जी कि मुझे 190 मिलियन पाउंड में भी आप रिलीफ दे, तो वो रिलीफ जो है वो उनको नहीं दिया गया और वो दरख्वास्त उनकी रद्द कर दी गई है। तो अब देखना ये है कि क्या अब वो अपील में यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हैं, किस कोर्ट में आते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाले से तो खबर और भी है, वो जो तखय्युलाती या वो मफरूज़े पर मबनी एक मफरूज़ाती दरख्वास्त थी जी के, लेकिन वो मफरूज़े हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ वज़ीर दिफा ने भी बयान दिया था कि जनाब उधर हो सकता है, तो अब उसमें वफाकी हुकूमत क्या कहेगी? वफाकी हुकूमत कहेगी कि जनाब अभी तो वो मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जब कोई शवाहिद आएंगे तो फिर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हम जो भी होगा करेंगे। तो उस पर फिर क्या करेंगे? वो क्या कहेगी कि भाई नहीं हो सकता किसी का ट्रायल, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केस वो पड़ा हुआ है, लेकिन वो 2(1)(d)(2) का है, वो तो एक मुख्तलिफ बात है। हाँ, मैं इस पर ये सर कहना चाह रहा हूँ कि इस मामले के ऊपर जो ये महज अखज़ कर लिया गया या फ़र्ज़ कर लिया गया, अब ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई है। इमरान खान जिस ख़दशे का इजहार जेल में बैठ के कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि फैज़ हमीद को मेरे साथ लिंक किया जाएगा। अब ISPR की जो हालिया लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने ये बात ज़रूर कन्फर्म की है कि अभी ट्रायल का बाकायदा आगाज़ हुआ है, फ़ौजी अदालत ने ट्रायल का आगाज़ कर दिया है। अब फैज़ हमीद के ऊपर एलिगेशन क्या हैं, समरी ऑफ एविडेंस अभी नहीं आई है, समरी ऑफ एविडेंस क्या है, वो सारी चीज़ें अभी चलना बाकी हैं, और उस एविडेंस के बाद कहीं कोई चीज़ लिंक होती है तो फिर उसके बाद ये कहीं पता लगेगा कि इमरान खान साहब का मामला इसमें आता है या नहीं आता। तो बहुत पहले इमरान खान साहब ने जिस स्पीड के साथ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, तो फिर उन्होंने हाई कोर्ट में भी उसी स्पीड के साथ जी उसी स्पीड के साथ रिलीफ दिया। बल्कि इसके ऊपर जो अभी मैं थोड़ी देर पहले ख़बर पढ़ रहा था, जो वफाकी हुकूमत के वकील थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा है कि सर अभी वो एतराज़ात बाकी हैं, तो पहले आप एतराज़ात को देख लें क्योंकि अभी रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात ये लगाए थे कि आपने कोई FIR में नहीं बताया कि किस FIR में नॉमिनेटेड हैं, अभी कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड नहीं किया, और दूसरा ये इख्तियार, अगर ये मामला हुआ भी तो ये पंजाब की जुरिसडिक्शन है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस इशू को कैसे एंटरटेन कर सकती है 199 के तहत। तो जब उन्होंने देखा कि वो एतराज़ात तो अभी बरकरार हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम एतराज़ात ख़त्म करते हैं।
تو یوں فیڈرل گورنمنٹ سے جواب مانگا گیا ہے، پیر تک سماعت ملتوی کی گئی ہے، پیر کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ اچھا، مطلب ہے کہ یہ پھر وہ گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے 184(3) والی جورسڈکشن اختیار کر لی ہے۔ سر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں ماورائے آئین جو ریلیف تخلیق کر سکتے ہیں وہ ان کے رجسٹرار آفس کے، اب رجسٹرار آفس کے اعتراضات جو ہیں وہ تو ایک اصولی اعتراضات تھے، جورسڈکشن اور یہ سارا کچھ۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میں وفاقی حکومت سے بھی اور یہ ضرور کہوں گا کہ آپ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں اگر جب تک عمران پروجیکٹ کے ججز کا آپ تدارک نہیں کرتے، کوئی حل نہیں کرتے، ملٹری ٹرائل والا میں نہ جائیں۔ ہاں دیکھیں آپ کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا، وہ ادھر سے ملٹری، دیکھو ابھی سے اسلام آباد ہائی کورٹ، کونسل نے کرنا ہے نا طیب صاحب، کونسل نے کرنا، جس نے بھی کرنا ہے، ابھی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ پڑ گیا کہ ہائے عمران خان کو کیوں ملٹری لے جائے، وہ ابھی سے اس معاملے پہ آ گئے ہیں ایک مفروضے کی بنیاد پہ۔ ابھی جج صاحب، سول کورٹس کے اگر ایویڈنس اتنے مضبوط ہے تو سول کورٹس کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جج صاحب خود مان رہے ہیں کہ یہ سیاسی بیانات ہیں، اور جب سیاسی بیانات ہیں، آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، آپ کے پاس متعلقہ ایف آئی آر نہیں ہے، آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، پھر بھی آپ جو ہے اس رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر کے اپنا جورسڈکشن کو پھیلا کے پنجاب میں جو میٹر آ رہا ہے اس میں آپ وفاقی حکومت سے جواب بھی طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جج صاحب خود مان بھی رہے ہیں کہ، لیکن بات یہ ہے کہ ان سے رہا نہیں جائے، یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ محبت میں شکار تخلیق ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ آج سنا جو وہ جسمانی ریمانڈ دیا تھا عدالتوں نے وہ بھی ختم کر دیا ہے، جو جلسہ جو ہوا تھا 8 ستمبر کو یہاں پہ، اس کے حوالے سے اس حوالے سے بھی خبر پڑی ہے، کیونکہ میں خود اس پروسیڈنگ کو اٹینڈ نہیں کر سکا، کہ اس پہ بھی ریلیف ملا ہے۔ لیکن ایک اچھا سٹیپ اس معاملے پہ پارلیمنٹ کی جانب سے یہ ضرور اٹھایا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ ایشو رہا ہے کہ اراکین اسمبلی کے جو پروڈکشن آرڈرز ہوتے تھے وہ جاری نہیں ہوتے تھے، تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، اور اس کے اوپر جو پارلیمنٹ والے واقعہ ہوا اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا، دیگر جو سیاستدان ہیں ان کی طرف سے بھی بات کی گئی، تو پروڈکشن آرڈرز کم از کم اب ان ممبران کے جاری ہوئے ہیں، تو یہ ایک پارلیمنٹ نے بھی کیا اور اچھی مثال ہے، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو جناب آج جو ہے وہ جب میڈیا کی توہین عدالت کے شوکوز نوٹس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس میں جو ہے وہ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جھوٹی خبر دینے کے حوالے سے کیا کوئی چیک اینڈ بیلنسز ہیں، تو اسی میں جو ہے وہ کہ یوٹیوبرز کا بھی ذکر آیا اور کہہ دیا کہ کئی یوٹیوبرز تو بابلے ہوئے پھرتے ہیں، تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کئی بابلے یوٹیوبرز کے جو ہیں وہ اس کے اوپر رد عمل۔ تو شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک فیس لائف سے اجازت دیجیے، اللہ نے